has fans, and I'm a very, very committed fan. Put our hands together for Shri Dara Singh. Thank you so much. Thank you. Now the author of the book, ladies and gentlemen, the lady who's on stage, Seema Sonik Alimchan. You know, I've worked with a lot of authors, but what is unique about Seema is the deep reverence. I mean, we would spend hours talking about Dara Singh ji and forget that we're editing a book. You know, there was such deep Omi. And as a child of the industry, like I said, there were many times when we would go elsewhere because we were talking about Dara Singh ji. And one particular thing she would say to me again and again and say that, you know, whenever I recall all my interviews with the family members of Shri Dara Singh, I can never forget their warmth, their hospitality and absolute class when it came to them helping me write the book. It wouldn't be wrong to say that for her, Didara A.K. Dara Singh is more of a personal saga than a book. Yeah, thank you so much to the family of Shri Dara Singh to cooperate. Whatever little that I know about his life and his journey, I don't think there can be anyone better than Akshay Kumar to unveil a book on Dara Singh, the self-made men from the soil of Punjab, the salt of earth, and absolutely honest when it comes to their art. Thank you so much, Akshay. Thank you. And of course, this book wouldn't have been possible without the encouragement, love, and support of a man that I'm now going to introduce. And obviously, ladies and gentlemen, and which is his father, the respected Dara Singh, for us, and it's been absolutely wonderful and fantastic. And now, Seema, I know that both Binduji and Akshay will give women the right of way, always ladies first, if I know the core of who these men are. So first up, the author of the book, Seema Sonik Alimchan, to say a few words about the book. Thank you. Ladies and gentlemen, Dara, the book, is the life journey of the great Mr. Dara Singh. Like Sudha just said, it tells of his childhood years spent working the fields of Punjab. It tells thereafter of his many years of struggle to earn a living and then to get into the world of wrestling. It tells of his travels to foreign shows, championships, tournaments, world tours, and finally he is declared the champion of the world. Dara Singh was also a champion in family matters. He fell in love, and he fell in love, and he fell in love and got married to a very pretty young girl from Amritsar, his mother's choice. And they have 5 wonderful children who helped me immensely with this book, as has Mr. Ratan Olak, Daraji's brother-in-law, and Kardamanji, Daraji's firstborn. I am so grateful to all of them. I especially cherish the very precious moments, hours really, that I spent with Mrs. Surjit Dara Singh Randhawa. She took me back to Punjab. It was the village life in Punjab. And the book is rightfully dedicated to her. You know, it wasn't as if Dara Singh did not face any obstacles or hardships or, pain in his life. But he always bounced back because he was a champion in the true sense of the word. He was a winner. Not only because of the hard work that he put in since childhood, but also because of the dedication that he had. It was not only that physical strength that we all know him for, it was an inner strength that he possessed. You know, वो हिंदी में कहते हैं, मेहनत के साथ भक्ति हो और बल के साथ शक्ति हो, तो जीत तो होनी ही है. That was Dara Singh. Dara, the book, is like the man himself, very, very inspiring. And it's also very action-packed and very exciting. And it's so amazing and so beautiful the way this universe works that we got the superstar, Mr. Amitabh Bachchan, to give a cover quote for the book. And then today, we have a mega star, probably the perfect example of Daraji's ideology, his strength, and his good looks, here to launch the book, much thanks to Bindu there. And it's a historic moment, and I'm so very, very happy to be a part of it. Thank you. Thank you, Seema. I'd like to say कि ये बहुत ही important day है हमारी फैमिली की लाइफ में. हमें बहुत हम किस्मत वाले हैं. मेरे बड़े भाई परदुमन, मेरे छोटे भाई अमरीक क्या हैं, और मेरी बहनें जो यहाँ नहीं हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ, फैमिली, सारे दोस्त यहाँ हैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरा बेटा यहाँ नहीं है,
everybody who's not there, we love you all. डैड की जो बुक है, एक ड्रीम थी हमारी कि डैड की बुक आए और जो इंस्पिरेशन ये जनरेशंस को दे रही है. From the old people, everybody knows him, but I think जो young बच्चे हैं 16 साल 15 साल, they should also understand कि अगर आप अचीव करना चाहो और कोशिश करो तो कुछ भी कर सकते हो. And I want to just thank Akshay, जिसे मैंने एक बार आके feel I want you to inaugurate my book, and he was so magnificent. He said, "Look, why do you want me to come here and be here?" And मैंने बोला भाई सीधी सी बात है कि there is only one खिलाड़ी of Bollywood, international खिलाड़ी number 1, and this is the खिलाड़ी of wrestling, and it would be wonderful if you launched it. Thank you very much. And now, ladies and gentlemen, Akshay Kumar, who would like to say a few words, share some of his memories with the great Tara Singh. Akshay Kumar, here he is. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय कुमार. ये मैं हूँ, आप लोगों को बता दूँ कि मैं हूँ कहीं खुलावा में. तारा सिंह साहब वहाँ आए हुए थे कोई इनॉग्रेशन करने के लिए. तो मेरे पिताजी भी रेसलर थे एंड वो भी लंबे चौड़े थे. एंड कैसे ना कैसे वहाँ हमें 3 टिकटें मिली, मैं और मेरी सिस्टर और मेरे फादर. ये मतलब ये दिन मैं अभी भी बता सकता हूँ कि ऐसा लगता है जैसे कि कुछ 4-5 दिन पहले की बात है ये. क्योंकि ये जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है इस पे एक शब्द लिखा था किल रॉय. उस वक्त एक टी शर्ट हुआ, मतलब कंपनी का नाम था किल रॉय. अब वो कंपनी बंद हो गई है. So I still remember this photograph as if it was clicked about 5 days back only. I'll tell you one small story जो हमें मालूम है तारा सिंह जी के बारे में, शायद इस किताब में ना हो. तारा सिंह साहब की एक मिथ थी, लेकिन बचपन में जब हमें ये नहीं पता था कि ये मिथ है, हमें लगा कि ये असली में. हमें ये पता था कि तारा सिंह जी के पीठ पे त्रिशूल है. ये कमाल की बात है. तो हम यही सोचते थे कि इनकी पीठ पे कोई त्रिशूल है, और अगर इनको गुस्सा आएगा तो तारा सिंह साहब की तीसरी आंख है वो खुल जाएगी. ये मैं भगवान कसम कह रहा हूँ कि मुझे यही मालूम था कि इनकी तीसरी आंख भी है, कि इनको गुस्सा नहीं आना चाहिए. क्योंकि अगर ये लड़ते वक्त कोई 3-4 राउंड हार जाए तो 4थे राउंड पे अपनी आंख खोल के तो उसको पीट देंगे. तो हमें तो यही पता था, हम तो यही जानते हैं कि अगर शक्ति की बात हो तो यही मालूम है कि तारा सिंह जी का नाम ही लिया जाएगा. शक्ति मतलब तारा सिंह. यहाँ तक कि ये नाम इस इंडस्ट्री के अंदर अमूमन तौर पे ऐसे भी लिया था, ओ क्या अपने आप को तारा सिंह समझता है क्या? तो मतलब अपने आप को पहलवान समझता है. सो आई हैव, मैंने बचपन में वो स्टेडियम था वल्लभ भाई, तो वहाँ मैंने कितने 2-4 मैचेस भी देखे हैं उनके. वहाँ जाके बैठ के देखा करते थे कि कैसे उछल के मारते हैं. सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट अगर मुझे ये मौका मिला कि उसकी बुक आके रीड करूँ. एंड साथ में आज बगर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं. मैं इनके बारे में बताऊंगा कि मैंने अपनी फर्स्ट फाइट, फिल्म इंडस्ट्री की जो फर्स्ट फाइट है, वो बगर साहब मेरे यहाँ मेरे फाइट मास्टर रह चुके हैं, जिन्होंने मुझे काफ़ी कुछ फाइट के बारे में सिखाया. और पहला पंच मेरे मुंह पे जिसने मारा था वो गुरबचन साहब भी वहीं बैठे हुए हैं. इन्होंने पहली बार मुझे मारा था फिल्म के अंदर. एंड किया था भाई. So it's a very special occasion, and I won't take much time, and are we going to have question answers? No, we will, but before that, an AV has to play, Akshay ji. Yes? So let's play that. Small AV which Yes. I requested Venu sir to just get ensemble all his work together, and so we all can see it. So here is the AV. Let's watch it. तारा सिंह जन्म 19 नवंबर सन 1928 में हुआ अमृतसर जिले के धर्मचक शहर में. बचपन से ही तारा सिंह जी को कुश्ती का शौक था, पर ये शौक इन्हें वर्ल्ड चैंपियन बना देगा, एक एक्टर बना देगा, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था. तारा सिंह साहब 6 फुट 2 इंच लंबे,
127 किलो का भार और 53 इंच का सीना लिए एक जबरदस्त पहलवान रहे। बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म किंग कॉन्ग जो सन 1962 में आई थी, उसमें ये बतौर हीरो नजर आए। सन 1963 से ही इन्हें हीरोइन मिल गई और हीरोइन कोई और नहीं, वो रही मुमताज जी। तकरीबन 16 फिल्मों में इन्होंने साथ काम किया। भारतीय सिनेमा और स्टेज के दिग्गज कलाकार पृथ्वीराज कपूर साहब के साथ भी ये नजर आए थे। फिल्म सिकंदर आजम, खाकान, लुटेरा, डाकू मंगल सिंह और इंसाफ में। सिकंदर आजम में इन्होंने सिकंदर का ही किरदार निभाया था और 80 के दशक तक आते आते दारा सिंह साहब ने एक ऐसा किरदार निभाया जिसने इन्हें हर घर का हिस्सा बना दिया। रामानंद सागर की टीवी सीरीज रामायण में ये बतौर हनुमान जी का चरित्र निभाते नजर आए। हिंदी और पंजाबी फिल्मों में ये लगातार काम करते रहे। जब इन्होंने फिल्मों में एक्टिंग शुरू की तब कुछ फैंस जरा नाराज हो गए थे। इस बात पर दारा सिंह साहब हंसे जरूर, पर यह बात साफ भी कर दी कि एक्टिंग जरूर कर रहे हैं पर कुश्ती नहीं छोड़ेंगे। और यही वजह रही कि इन्हें 1954 में रुस्तम हिंद का खिताब मिला, 1966 में रुस्तम पंजाब, और जब तक ये रिटायर नहीं हुए ये वर्ल्ड चैंपियन बने रहे। कोई भी इनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं छीन सका। एक्टिंग में कदम रखने की वजह एक और भी थी। दारा सिंह साहब ने सोचा कि जब कोई पहलवान बूढ़ा हो जाता है तब उसकी माली हालत खराब हो जाती है, और ऐसे बहुत से उदाहरण इनके सामने थे, खासतौर पे गामा पहलवान का, जिन्हें बुढ़ापे में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था क्योंकि पैसे की तंगी थी। दारा सिंह साहब ने सोचा कि क्यों ना फिल्मों में ही काम किया जाए, बुढ़ापे में क्या मालूम ये पैसा काम आ जाए। पंजाब के मोहाली शहर में इन्होंने एक स्टूडियो भी बनाया और ये पहले ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के कारण इन्होंने रेसलिंग से रिटायरमेंट ली, पर एक्टिंग से नहीं। टीवी सीरियल्स में ये नजर आते रहे और सन 2012 7 जुलाई को ये मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए गए। इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। 11 जुलाई को इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और 12 जुलाई सन 2012 में इन्होंने प्राण त्याग दिए। कुश्ती के इतिहास में और भारतीय सिनेमा के इतिहास में दारा सिंह साहब का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। What a legend. टेबल हटा दीजिए पीछे पीछे पीछे
Thank you so much. That Ditara is okay. Every okay. The floor will open for 1 or 2 questions maximum. I'll ask them a few questions, but only if this gets over. Everyone settle down. Yeah. Yes, please. That's very nice. अक्षय जी से बाकी लोग भी पूछे, लेकिन अक्षय, I wanted to ask you one thing, that the way in that picture you're standing next to Dara ji and you are a fanboy. Do you have these days such small children come in and asking you about how to build body, how to be healthy? Sorry, yeah, go ahead. I was asking that you were standing next to Dara ji. आजकल के दिन में आपके पास इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं कि आप बॉडी कैसे बनाते हो, हमें बताओ, give us some tips. We want to be, because see, you have always insisted on being healthy. You sleep early, you get up early. We all know you're a healthy guy. Do you have such queries from, let's say, teenagers? Yeah, the children do come. Today morning I was shooting with a child. I was shooting for an ad, and there's this child who was an artist, and he was asking me about it, how to eat healthy food. On the contrary, उसकी माँ भी थी. अक्षय जी बताइए ना ये देखिए, ये कोई फ्रूट नहीं खाता, इसे समझाइए. देखो बेटा, अगर आपको अक्षय बनना है तो आपको फ्रूट खाना पड़ेगा, वेजिटेबल खाना पड़े. तो yes, so I have these kind of moments coming sometime. But मैं वहाँ डरा हुआ था. अगर वो फोटो वापस आएगी तो आप देखोगे उनका हाथ मेरे पे था, मैं डरा हुआ था कहीं मुझे मार ना दे. जैसे मैंने कहा कि I had this thing about इनकी तीसरी आँख खोल ना जाए, so something like that was there in my head. Bindu, I wanted to ask you, in the book you say that you were teased in school, right, when you were going? Absolutely. सब छेड़ते थे इनको, और इन्होंने जाके अपने पापा से जब कहा तो उन्होंने कहा कि तुम बॉडी बना लो और स्कूल के वेकेशंस जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद जाना, मैं देखता हूँ कौन तुम पे हंसता है. So it was basically that if you look good and healthy, everyone is going to take seriously. You want to say a few words about that? No, I was the weakest boy in class till the 8th standard, and my father would tell him कि it's a curse कि मैं आपके घर में पैदा हुआ, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे, दारा सिंह का बेटा, मुझे रोना आता है. बोला रुक जा, लंबा हो जा और तब तेरी एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा. तो 8th स्टैंडर्ड से मैं स्टार्ट हुआ और बॉडी बनाई. ये ऐसे जैसे ये अक्षय कर रहा है, अभी उसका बेटा कर रहा है, जो स्टंट्स और सब वैसे हम लोगों ने भी बहुत किए.
तो जब डैड अच्छे होते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तरह सेहत के बारे में सिखाते हैं, तो बच्चे भी खतरनाक दिखते हैं, वो भी बहुत बड़ा खिलाड़ी निकलेगा 100% आरव। God bless. Seema, the warmth that you always spoke about and your dedication is for Mrs. Dara Singh. You want to say a few words about the warmth that you got from the woman who actually carried his legacy forward, his mother? Mrs. Surjit Dara Singh Randhawa, Surjit Aunty. I met her last year in March. And from the moment that I met her, she first gave me a big hug. And after that it was just lots of cups of tea, lots of stories. And she herself was a story writer. I mean, she has one book somewhere in Punjabi, she's written her whole village life. And she took me back to the village in Punjab. You know, she was in Amritsar. And how she met Daraji the first time, and her chachi used to tell her that, you know, wrestler hai, unse shaadi karo. So she said, मुझे नहीं करनी कोई wrestler से शादी. And then he said, चाची said कि तू बहुत बड़े हैं, ट्रेन पे चढ़ेगी, ऐश करेगी. So she replied to her, आप करो और आप प्लेन पे चढ़ो, आप ऐश करो, मुझे छोड़ दो. But she was such a beautiful and such a strong woman. She completed the book with me. And unfortunately, March this year, she passed away. I miss her tremendously, and I wish she'd been here today. Thank you so much. Mrs. Bindu Dara Singh wanted a question, you know, to ask her husband about dad, she said so. Yes, because we all want to hear your memory about your father. So I want to ask you a question. If your father punished you ever, you or no, and how? I think I've mentioned it in the book, yeah? Yes. Have we? The We have. cupboard. So now, honey, you'll also have to read the book. I'm taking one book for home for you. I was a little naughty boy. I would not listen. जब आप अपने डैड की बात नहीं सुनते, I think वो भी बहुत गलत है. तो he gave me ample warnings, and one day, only once in my life, ये जो त्रिशूल की बात कर रहा है, तीसरी आंख मेरे पीठ पे लगी, तो यहाँ एक त्रिशूल बना था एक बार. तो you'll be reading that in the book, honey. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने रियलाइज किया होगा कि ये प्रश्न क्यों पूछा गया है. Because if he does something wrong, she has to punish him the same way. Considering Punjabi में कुछ भी हो never जाए, punish little कुछ भी हो जाए, girls, बीवी की तीसरी आंख मत खुलवाना. नहीं. Thank you so much. And if there is just, I can take maybe one question because we are running out of time. Yeah, the little girl. या ज्योति. So it's a thing that to be a Dara Singh, it's a very wrestler kind of a body. I would like to, I have to change my body for that. I have to put on a lot of, I would say, I have to expand a lot more on the chest side. And because he was a huge man, and I have to justify him completely. And for that, I require at least about 2 years of training to put on that kind of a bulk and look like a wrestler. So if I don't have much movies, and if I have to put on, and if Bindu requests me quite a lot, maybe, I don't know. कर दे. Don't worry, there's only one Akshay Kumar, and एक ना एक दिन इसे घर पे जाके धरना करेंगे और ये फिल्म बनेगी. I don't want to tell you. I don't want to ask you a question, but I want to tell you that I'm the author's niece. Oh, very lovely. So lovely to meet you, young lady. Thank you so much for being here. And for the rest of you, there are books outside which all of you can buy and get it signed from Seema. Thank you so much for being a Thank you. wonderful Thank you, audience. guys. Once again for Didara A.K. Dara Singh, a round of applause. Thank you. Have a lovely. Love you, baby. कबीर
सर ये जो दी दारा को टाइटल मिला है इसके पीछे क्या रीजन है? जब ये सीमा ने, हमारा तो दिल था दारा सिंह ही टाइटल होना चाहिए, लेकिन सीमा ने बचपन से ये बुक को यानी पूरा स्टडी किया और डैड का जब नाम रखा गया था तो दी दारा उनका रियल नाम था और दारा सिंह उनका नाम, प्यार से दारा बुलाती थी उनकी माँ, और दारा से ही वो फेमस हो गए। वैसे ही मेरा नाम वीरेंद्र रंधावा है, लेकिन प्यार से सब लोग मुझे बिंदु बुलाते तो मैं बिंदु से फेमस हो गया। तो आई थिंक टाइटल में थोड़ी सी हमारे क्लैश था। मेरा दिल था सिर्फ दारा सिंह होना चाहिए, पर उन्होंने कहा नहीं, दी दारा द आका दारा सिंह है, ठीक, तेरी मर्जी है, तू राइटर है, तू कर ले। आई फील वेरी गुड, यू सी ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वेरी लवली पर्सन। और मतलब यानी जब मैं उसको कुछ बोलता हूँ कि कुछ पूछता हूँ तो वो हमेशा सुनता है हमारी बात। हम लोग मधुमती क्लास से साथ में एक्टर बनने से पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं और मुझे लगता है उसने बहुत कमाल किया है। जैसा वो लॉन्च करेगा बुक को, ऐसा कोई और कर नहीं सकता। वो इतने मज़ेदार आदमी है और मुझे लगता है जब दारा सिंह जी की फिल्म बनेगी तो वही हीरो होने चाहिए। कोई एक बात आप शेयर करना चाहेंगे दारा सिंह साहब? हाँ, इतना लोगों को इंस्पायर कर सके। दारा सिंह साहब की बहुत बातें हैं, यानी वो मतलब ऐसे आदमी थे कि आप बिलीव नहीं कर सकते। कोई बोल नहीं सकता कि वो स्टार है या कोई पहलवान बहुत बड़े हैं या चैम्पियन है। वो हमेशा ज़मीन से जुड़े थे। और अक्षय भी हमें एक चीज़ हमेशा जब भी मिलता है, मैं बिग बॉस जीत के बाहर निकला तो उसने एक ही चीज़ बोली, बिंदु सुन ली, ज़मीन पे रहना। तो वो डैड ऐसे नहीं बोलते थे ज़मीन पे रहना, लेकिन ज़मीन पे ही रहते थे। तो ये दोनों में एक सिमिलैरिटी है, मुझे लगता है बहुत कमाल की। और हम भी हमेशा ज़मीन पे रहने वाले आदमी हैं, ज़मीन पे रहेंगे। आप कभी भी, आपको याद रखना, अहंकार जो है वो बहुत रॉन्ग चीज़ है। हमारे डैड की एक पोएम है, वो भी हम पिक्चर में डालेंगे, बहुत कमाल की पोएम है, आजकल के लिए एकदम राइट पड़ती है। तो पिक्चर अगले साल ज़रूर स्टार्ट होगी। आपको समझ पड़ेगा, हमारे डैड जो है उन्होंने इतना किया, सबके लिए किया, हमारे लिए किया, फैमिलीज़ के लिए किया। और जब उनके लिए हम लोग कुछ करते हैं तो बहुत खुशी होती है। उनके लिए जितना करें उतना कम है। लेकिन जैसे अब ये पोस्टर मैं अब घर ही लेके जाऊंगा, तो आई थिंक इट्स हमारी किस्मत अच्छी है जो उनके घर में पैदा हुआ। अच्छा, अक्षय सर ने इच्छा जताई है कि दारा सिंह साहब पर एक बायोपिक बने। आप बायोपिक तो जी बन गए हैं। मारूख मिर्ज़ा यहाँ आए हैं, मारूख मिर्ज़ा इधर आइए। कैसी इतनी फैबुलस स्टोरी लिखी है इनने। ये अफजल है, इनने पूरी डन की है। डायरेक्शन प्रोडक्शन कौन करने वाला है, यानी वो तो फिक्स हो गया है। अब हीरो जो है वो अभी स्टेज पे जाके निकले हैं। उसने एक लाइन सही बोली, अगर बिंदु मेरे पीछे पड़ेगा, मैं इसके घर पे चिंबड़ जाऊंगा, जो बीच से जंप मार के अंदर जाऊंगा। टीना माँ मुझे चाय पिलाएगी सुबह और इसके घर पे रहेंगे पूरा जब तक ये साइन नहीं करता। इसको इतनी बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है अक्षय कुमार कोई भी चीज़ में जान डाल देते हैं, जो भी रोल करते हैं। अभी आप देखोगे बेबी या कोई भी पिक्चर उनकी देखोगे, एयरलिफ्ट, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आप ब्रदर्स में जितनी बॉडी बनाई उतनी बॉडी चलेगी। दारा सिंह का रोल जब वो करेंगे और जब वो बात करेंगे तो ऐसे लगेगा डैड की हम्बल आवाज़ उसके मुंह से निकल रही है। मुझे लगता है ही इज़ परफेक्ट। तो सर इस रोल पे स्टैम्प लगा दिया जाए कि अक्षय कुमार लगा दो। अपने आप में ये भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि उसने फोटोग्राफ किया था उस जमाने में। कभी डेस्टिनी है